From 25th, your revision tests are starting. So on next Monday, you will have your first revision test. Syllabus for the same will be first 2 units, physical world and measurement and kinematics. And syllabus for second revision test will be remaining 2 units, laws of motion and work, energy and power. ठीक है, तो अब वर्टिकल सर्कल कर रहे थे हम. Let's do that. Continue that. So there is weight. Let us say lowest point is L, and angular speed of object is this direction. So we can draw velocity at lowest point by drawing tangent at that point. How can you draw velocity at that point? By drawing tangent at that point in the direction of rotation. And what are the forces acting on the stone at the lowest point? Weight acting in the downward direction, tension acting in the opposite direction. Tension is acting in the opposite direction. So let us write at lowest point equation. What is the net centripetal force? That is along the radius. Centripetal force में difference आपको radius के along लेना पड़ेगा. T1 minus mg is equal to net centripetal force, and the formula of force is mv square over r. So at the lowest point we write the equation T1 minus mg is equal to mv square over r. Is that clear how we have written? T1 minus mg is equal to mv square over r. Now let us take highest point as well. Highest point. अब इस पे velocity ऐसे बनेगी, velocity at the highest point. So how can you mark the forces? अगर स्टोन यहाँ पे होता तो कैसे फोर्स मार्क करते? एक तो वेट भी इधर ही होता, और थ्रेड यहाँ है तो टेंशन भी इधर ही होती. जब थ्रेड ही इधर है तो टेंशन ऊपर थोड़ी ना होगी, होगी तो थ्रेड में ही. तो अब आपका हाईएस्ट पॉइंट पे इक्वेशन क्या बनेगी? T2 plus mg is equal to centripetal force mvh square over r. This is your equation number 2. This is your equation number 2. हाँ जी, VL लिखा ना मैंने. लोएस्ट पॉइंट पे VL, हाईएस्ट पॉइंट पे VH लिखा है इसको. अब हमारा एम है टू फाइंड T1, T2, VL, VH. चारों चीजें निकालनी है. वेलोसिटीज एट द पॉइंट्स, टेंशंस एट बोथ द पॉइंट्स. अब इक्वेशंस आर 2, अननोन्स आर 4. तो हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते जब तक एक वैल्यू कम से कम पता नहीं हो. So let us start with the tension at the highest point 0. I told you, घर पे किया किसी ने एक्टिविटी, मैंने कहा था करके देखना और वीडियो बना के भेजना. कुछ नहीं करते. मैंने कहा था कि इफ यू गिव सफिशिएंट वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट तो आप छोड़ भी दोगे हाईएस्ट पॉइंट पे तो गिरेगा नहीं. तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट कैन बी 0. ठीक है, मिनिमम वैल्यू टेंशन की 0 हो सकती है. So let us start with 0. So let us say that T2 is 0. तो T2 की वैल्यू तो एक तरह से आ ही गई है हमारे पास. अब put in equation number 2. Put in 2. क्या आएगा? T2 plus mg. mg is equal to mvh square over r. यहां से वेलोसिटी आ गई एट द हाईएस्ट पॉइंट अंडर रूट वी आर. तो एक पॉइंट पे वेलोसिटी तो मिल गई, बट स्टिल द प्रॉब्लम परसिस्ट. अब हमें T1 और VL दोनों चाहिए, एक इक्वेशन में है वो. अब जब तक एक नहीं पता चलता हम दूसरा नहीं कैलकुलेट कर सकते. सो वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे. व्हाट वी कैन डू इज वी कैन अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट द लोएस्ट एंड एट द हाईएस्ट पॉइंट. उससे एक चीज निकल आएगी हमारे पास. सो लेट्स अप्लाई conservation of energy. Let's apply the law of conservation of energy
at L and H points. ठीक है, तो टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट इज टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट. काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट्स is kinetic plus potential energy at the highest point. यही होगा ना. What is the kinetic energy at lowest point? Half mvl square. What is potential energy अगर उसको ground level ले लें? 0. Kinetic energy at highest point. Half mvl square. And what is the potential energy here? m, g और h कितना है? Equal to diameter of the circle. h कितना है? Equal to diameter of the circle. Radius of the circle हमने r लिया है तो 2r हो गया. ठीक है, यहां से m तो कैंसिल आउट हो गया आपका. अब वैल्यू पुट करिए vh की यहाँ पे तो vl आ जाएगा. vl square by 2 is vh square by 2 plus 2gr. Put the value of vh square here. तो ये आ गया आपके पास vl under the root 5gr. So we got velocity also at the lowest point. That is more important than velocity at the highest point. तो अगर हम sufficient velocity देते हैं at the lowest point, only then the loop will be completed. Only then the vertical circle will be completed. तो जो बाइकिस्ट है, मोटर बाइकिस्ट है इन द सर्कल ऑफ डेथ, वो इतनी वेलोसिटी से क्रॉस करता है कम से कम तो वो सर्कल कंप्लीट कर पाता है, नहीं तो नहीं. ठीक है, हो गया ये. नाउ पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो vl स्क्वायर की वैल्यू. अब आपके पास आ जाएगा P1. चलिए बताइए आफ्टर सॉल्विंग व्हाट इज P1. हाँ जी 6 mg. तो आपका T1 आ गया 6 mg. So we have found all the values T1, T2, VL, VH. So this is all about motion in a vertical circle. Examples आपने लिख लिया already. So this is over now, and we'll be starting with the exercise. Have a look at this first. कोई doubt है तो पूछ लो. Yes, if you have any doubts, you can ask. I'm going to share the exercise with you. Okay, so let's do it. ये न्यूमेरिकल पे आओ डायरेक्ट. Question number 4, 6.4. The potential energy function for a particle executing linear simple harmonic motion is given by V is equal to half kx square. Where k is force constant of the oscillator, for k equal to 0.5 Newton per meter. k दिया हुआ है. The graph of v versus x is shown. ये ग्राफ देख रहे हो आप, वो दिया हुआ है.
show that a particle of total energy 1 joule moving under this potential must turn back when it reaches x equal to plus minus 2 meter. x निकालना है आपको, एनर्जी दी हुई है 1 joule, v is given 1, तो फाइंड k from x from here, कितना आ जाएगा? टू आ गया, प्लस माइनस 2 आ गया ना, तो ग्राफ के अकॉर्डिंग भी दो ही वैल्यूज बनती है. So this we had to prove कि 1 जूल है तो x इतना होगा, क्योंकि वो ऑसिलेट कर रहा है सिंपल हार्मोनिकली, तो दो पोजीशंस होंगी x की, +2 एंड -2. आगे सब स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं. आइए न्यूमेरिकल पे 6.9. अ बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, रेस्ट पे है तो u0 लो. It undergoes one-dimensional motion with constant acceleration. The power delivered to it at any time t is proportional to, options are t raised to power 1/2, t raised to power 3/2, t square. किसके प्रोपोर्शनल है? पावर. एक्सेलरेशन कांस्टेंट दी हुई है आपको, एक्सेलरेशन कांस्टेंट दी हुई है, पावर किसके प्रोपोर्शनल है? टाइम की. कौन सी पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वी आर टू सॉल्व दैट. अब पावर होती है फोर्स इंटू वेलोसिटी, एफ होता है फिजिकल टू एम ए, है ना, और वेलोसिटी होती है एक्सेलरेशन इनटू टाइम. अगर हम ए लिखें v/t, तो v क्या लिख सकते हो? एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ द थिंग्स दैट आर गिवन. हमें एक्सेलरेशन के बारे में कहा गया, तो लेट इट्स बेटर टू एक्सप्रेस वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन. तो ये आ गया आपका ma²t. अब मास कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, तो पावर किसके प्रोपोर्शनल है? फर्स्ट पावर ऑफ टाइम. तो ये आपका आंसर आ गया, पावर इज प्रोपोर्शनल टू टाइम डायरेक्टली इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. तो अकॉर्डिंगली यू कैन टिक द राइट ऑप्शन. हाउ मेनी ऑफ यू आर हैविंग एनसीईआरटी? एक इधर है, एक इधर है, बस इधर नहीं है, कैसे देखोगे सर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो उसका थोड़ा सा रिवर्स है. हाँ कर लो कर लो. 6.10 10th क्वेश्चन में डिफरेंट दिया हुआ है. बॉडी इज मूविंग यूनिडायरेक्शनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट पावर. अब पावर कांस्टेंट दी हुई है. इट्स डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? अब डिस्प्लेसमेंट की हमें डिपेंडेंस देखनी है टाइम के ऊपर व्हेन पावर इज कांस्टेंट. So let us see now how we can express. Power is constant. We have to find S की dependence. अब power, force into velocity is a constant. ut plus half at square. u को 0 ले लो, ठीक है. फोर्स इज F इज इक्वल टू ma और v at. ma square t is a constant. अब मास कांस्टेंट है, तो इसका मतलब a² t इज अ कांस्टेंट. अब एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट नहीं है. t a is equal to, you can write constant over under root of t. ये नीचे ले गए आप, तो अंडर रूट हो गया. इज दिस स्टेप क्लियर?
तो अब यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन है कांस्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम, डिपेंडेंस देखनी है ना, प्रोपोर्शनैलिटी डाल दी हमने यहाँ, ए को पुट किया आपने 1/√2। इसको सॉल्व करिए, क्या आता है? ये आ गया, तो सी पार्ट इज करेक्ट। मतलब आपने उस टर्म्स में एक्सप्रेस करना है जिसकी बात की गई है। अब हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट तो एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रही है, हाफ ए टी स्क्वायर। तो ए जो है वो कैसे वेरी कर रहा है पहले वो देखना पड़ेगा, वो पावर से रिलेट किया। इस तरह से ये वाले क्वेश्चंस किए जाते हैं। Have a look at this, and if you have any doubts, you can tell me. And so many students, they are not attending the classes. Daily there is a long list of absentees. हाँ जी, कुछ पूछना है तो पूछ लो। क्लियर? यस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर। इलेवेंथ, अ बॉडी कंस्ट्रेन टू मूव अलोंग z एक्सिस, ये कर चुके हैं हम। वर्क निकालना था, 12 जूल आया था ना आपका आंसर, याद है आपको? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये आपने कहा था न्यूमेरिकल करा दो, तो उसी दिन कर लिया था हमने। हाँ, वर्क इज फोर्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट -12 जूल था। अब देखो 12th क्वेश्चन, an electron and a proton are detected in a cosmic ray experiment. The first with kinetic energy 10 kilo electron volt and the second with 100 kilo electron volt. Which is faster, electron or proton? Obtain the ratio of speeds. Their masses are given, 1 electron volt is given. So we are having 1 electron and 1 proton. इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, हमें स्पीड्स की रेशियो चाहिए, काइनेटिक एनर्जी दी हुई है। लेट अस फाइंड रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, हाफ mv²। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी कितनी दी हुई है? इसकी 10 दी, इसकी 100, यूनिट सेम है तो कोई जरूरत नहीं है कन्वर्ट करने की। मास इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का 1 AMU, तो यहां से ये VE/BP निकल आएगा आपका, उधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, व्हाटएवर। ठीक है, तो ये आपको रेशियो स्पीड दे देगी। आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा फास्ट होते हैं क्योंकि लाइटर हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड मतलब दिस रेशियो विल बी ग्रेटर देन 1। तो आप बताओगे कि इलेक्ट्रॉन्स आर फास्टर। पर ये है कि इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी कम दी हुई है काफी, बट इवन देन वही आएंगे फास्ट। चलो करो सॉल्व, लेट अस चेक। रेशियो इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। ज्यादा टाइम नहीं होता तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकाल लिया करो। ठीक है, पावर्स कैसे निकालेंगे ये देखो। 1.67 को इग्नोर कर दो, 10⁻⁻27, 9 को 10 ले लो। ठीक है, ये आपका हो गया -27 ओवर ये 10⁻⁻29 -27 + 29 कितना आ गया? 10⁻², अंडर द रूट 10 टाइम्स आ गया है ना।
ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, नंबर लेस देन 5 को हम 1 ले लेते हैं, नंबर ग्रेटर देन 5 को हम 10 ले लेते हैं। हमने 9.1 को 10 ले लिया, 1.6 को इग्नोर कर दिया, तो उससे ऑर्डर तो ठीक आ ही जाता है। अगर छूटने वाला हो न्यूमेरिकल तो आप ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज नॉट रिकमेंडेड। 13th क्वेश्चन देखो अब, a rain drop of radius 2 mm falls from a height of 500 meter above the ground. It falls with decreasing acceleration due to viscous resistance of the air until at half its original height it attains maximum speed and moves with uniform speed thereafter. What is the work done by gravitational force on the drop in the first and second half of the journey? What is the work done by resistive force in the entire journey if its speed on reaching the ground is 10 meter per second? डाटा नोट कर लो, देखो कैसे करना है। Drop of radius 2 mm, velocity at 10, height is 500 meter, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन से हाफ हाइट तक जाती है ये ड्रॉप, उसके बाद मैक्सिमम स्पीड एक्वायर कर लेती है एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड देयर आफ्टर। What is work done by gravitational force on the drop in first half, second half, and resistive force का work entire journey if the speed on reaching the ground is 10 meter per second? Yes, कैसे करोगे ये? फर्स्ट हाफ में क्या है? It falls with how much acceleration does it fall with? फर्स्ट हाफ के टाइम पे वो कहते हैं कि ये मतलब कि कितनी एक्सेलरेशन से फॉल कर रही है? हाँ, मैक्सिमम लिखा है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन से फॉल कर रही है। ठीक है, हमने वर्क डन निकालना है फर्स्ट हाफ ऑफ जर्नी में और सेकेंड हाफ ऑफ जर्नी। फिर उसके बाद उसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाती है, उसके बाद कांस्टेंट स्पीड से फॉल करती है, और ग्राउंड पे उसकी स्पीड 10 है, इसका मतलब वो कांस्टेंट स्पीड भी 10 ही थी, ग्राउंड पे भी वही रहेगी। आप इमेजिन करो ना, एक पैराशूट है, तो शुरू में ऐसे ऐसे होता है, कुछ देर बाद वो कांस्टेंट स्पीड से गिरता है। तो आपका वर्क डन इन फर्स्ट हाफ ऑफ जर्नी mgh ही लगेगा। h को हाफ ले लो, हाइट को हाफ ले लो। मास ऑफ ड्रॉप कैसे निकालना है? मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम को कैसे लिखोगे? एरिया इनटू लेंथ। वो तो चलो रहने दो। वॉल्यूम कौन सा है? स्फेरिकल ड्रॉप है ना, तो वॉल्यूम लोगे 4/3 पाई आर क्यूब। और डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। ड्रॉप वाटर की है ना, तो डेंसिटी उसकी पता ही है हमें। रेडियस दिया हुआ है, पुट करो। पहले तो ये सॉल्व करना पड़ेगा। मास 2 mm, तो ये मास पहले तो आ जाएगा। मेन यही है कि मास नहीं दिया हुआ, बस आपने mgh/2 कर देना है फर्स्ट हाफ ऑफ जर्नी में। ठीक है, सेकेंड हाफ ऑफ जर्नी के लिए हम स्पीड को यूटिलाइज कर सकते हैं, वो देखो जरा। Because whatever potential energy it was having is converted into kinetic energy when it reaches the ground. तो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं हम। हो जाएगा सॉल्व, आइडिया मिल गया ना? तो ये mgh/2 कर लेना इसका। फोर्टींथ देखो, a molecule in a gas container hits a horizontal wall with speed 200 meter per second and angle 30 degree with the normal.
मॉलिक्यूल है वॉल को हिट कर रहा है 200 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। एंगल 30 डिग्री विद द नॉर्मल। And rebounds with the same speed. Is momentum conserved in the collision? Is the collision elastic or inelastic? हमें ये निकालना। कोलिजन तो इलास्टिक ही है, मोमेंटम कंजर्व्ड ही होती है। अगर वो सेम स्पीड से वापस आ रहा है गैस मॉलिक्यूल तो कोलिजन इलास्टिक ही है। और मोमेंटम तो सभी में कंजर्व्ड होती है, चाहे इलास्टिक होती है ना होती, मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन दिस रिएक्शन आल्सो। अब हमें निकालना क्या है, चेंज इन मोमेंटम पूछा है कि कुछ सॉल्व करने को नहीं कहा हुआ। हाँ बस ये पूछा है मोमेंटम कंजर्व्ड है कि नहीं, बस। हाँ इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना, आंसर आपके सामने ही। क्वेश्चन नंबर 15। A pump on the ground floor of a building. A pump on the ground floor of a building can pump up water to fill a tank of volume 30 meter cube in 15 minutes. In 15 minutes. If the tank is 40 meter above the ground and efficiency of the pump is 30%, how much electrical power is consumed by the pump? इनपुट कितनी है, मतलब इनपुट पावर निकालनी है आपको। देखो पंप कैसे चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। हम स्विच ऑन करते हैं, इट लिफ्ट्स द वाटर टू सर्टेन हाइट। तो जो आउटपुट पावर है वो किस फॉर्म में है? व्हाट इज द फॉर्म ऑफ आउटपुट पावर? मैकेनिकल वर्क। वर्क इज बीइंग डन बाय द पंप। तो मैकेनिकल वर्क कितना है? mgh, ठीक है। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाते हैं, किसी भी डिवाइस की एफिशिएंसी होती है आउटपुट ओवर इनपुट पावर इनटू 100। एफिशिएंसी इज आउटपुट मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल पावर over input electrical power that we want to calculate multiplied by 100। अब एफिशिएंसी है 30%। आउटपुट मैकेनिकल पावर को आप लिख सकते हो mgh ओवर टाइम, और इनपुट मैकेनिकल पावर आपने निकालनी है, ठीक है। ये आपने सॉल्व करनी। तो 0.3 ये x आ गया आपका, टाइम दिया है 15 मिनट, उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, ये एफिशिएंसी नीचे आ गई आपकी mgh। अब मास नहीं दिया हुआ ना वाटर का, अगेन यूज मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है? 30 और डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो ये मास आ गया आपका 30,000। G 9.8 या 10 वॉट एवर, और H है 40। यहां से वॉट में आपके पास इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर आ जाएगी। कोई वैल्यू क्लियर नहीं हुई हो, मास निकालना पड़ा बस, बाकी तो दिया हुआ है। एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई इनपुट कौन सी स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट है, और आउटपुट क्या है? पंप ने वर्क किया इन लिफ्टिंग द वाटर थ्रू सर्टेन हाइट। तो वो जो मैकेनिकल पावर है दैट इज मैकेनिकल वर्क ओवर टाइम, mgh ओवर टाइम। क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23 आप ट्राई करोगे कल। वी हैव डन अप टू 15th क्वेश्चन। ब्रिंग योर एनसीईआरटी टुमारो। एंड आपको मैं एक छोटा सा होमवर्क दे रही हूँ आज का। क्वेश्चन नंबर 22, 23 यूनिटरी मेथड ही लगना है और एफिशिएंसी लगनी है इसमें, वो आप घर से ट्राई करोगे, ठीक है।
22 and 23, I expect you to do this. हाँ बोलो. गैस कोलिजन्स की, गैस मॉलिक्यूल्स की कोलिजन वैसे भी इलास्टिक होती हैं, ठीक है. वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि वही गैस मॉलिक्यूल्स है इसमें. हाँ, अगर कैसे पता चलेगा, काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता है बिफोर एंड आफ्टर. काइनेटिक एनर्जी तो सेम ही है आपकी, क्योंकि वेलोसिटी सेम है. तो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, इसलिए इलास्टिक कोलिजन. क्या कह रहे हो? बस. Yes, anything else you want to ask?